کشن گنج والوں، میں آپ کے سامنے ایک صحابی کا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کشن گنج میں ایک دو نہیں بلکہ 10 اور 20 جلسوں میں اٹینڈ کرتے ہیں، ذرا غور کر کے سنیں گے۔ ہماری یہ دل کے اندر چینجنگ کیوں نہیں آتی؟ ہم نمازی کیسے نہیں بنتے ہیں؟ ذرا غور کر کے سنیے گا۔ نبی کے زمانے میں ایک صحابی کا نام ہے عبدالعزیٰ، مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ غور کر کے سنیے گا میرے بھائیوں، یہ نبی کے صحابی بکریاں چرا رہے ہیں، قرآن بھی گنگنا رہے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو سنا ایک مرتبہ اور قرآن کو سن کر کے یہ مسلمان ہو گئے۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وقال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آمین۔ تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اللہ خالق ہے، مالک ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، اپنے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی آمنہ کے لال، مکہ اور مدینہ کے گلیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا آپ لوگوں کے ذہن و دماغ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں، تاکہ بعد میں آنے والی باتیں آپ کما حق سمجھ سکیں۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں
وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کی خبر لے رہے ہیں، پوری دنیا کی خبر لے رہے ہیں، کہاں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، فلسطین میں کیسے جنگ ہو رہی ہے، یہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہاں کاٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی یہ حالت صرف ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ آپ بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان امن و سکون اور راحت کی دو سانسیں لیتا ہوا نظر نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کارن کیا ہے؟ اب یہ دکھاؤں گا کہ کارن کیا ہے۔ ایک نمبر وجہ میں بتا دوں کہ ہم نے کتاب اللہ کو، کتاب اللہ سمجھتے ہیں نا، قرآن مجید کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ ترکت فیکم امرین، اے لوگو میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ میری تقریر میں آپ کو بولنا پڑے گا، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک کتاب اللہ قرآن مجید، اور نمبر دو میری سنت یعنی حدیث۔ ان دونوں چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہیں کچھ نہیں کر پائے گی۔ آج دنیا کی طاقت ہمیں ہرا دے رہی ہے، ہم ہار مان جا رہے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ صحیح کہ غلط؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہم نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہماری یہ حال ہے آج۔ آئیے اب میں دکھاؤں کہ یہ جو آپ جلسہ کر رہے ہیں، ابھی شیخ محترم سے بات ہو رہی تھی اور شیخ محترم بتا رہے تھے کہ یہ جو لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ اصلاح معاشرہ، جلسہ کرنے سے معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا اصلاح ہو جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ کچھ حد تک مدرسے اور مسجدوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن سماج کے اصلاح کی اگر آپ بات کریں گے تو بالکل زیرو ہے، بالکل زیرو ہے۔ سماج کی اصلاح اس میں نہیں ہو رہی ہے، یہ بالکل زیرو ہے۔ دعوت و تبلیغ کا طریقہ جانتے ہیں؟ بہت سے لوگ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، علماء 5، 10، 15، 20 اکٹھے جمع ہو کر کے گھر گھر جاتے ہیں سمجھانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، چلو نماز پڑھنے کے لیے، چلو یہ کام ٹھیک ہے، چلو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، کچھ دن کے بعد بے نمازی کہتا ہے مول صاحب خالی نماز روزہ آپ کر رہے ہیں، نہیں جاؤں گا میں، کیا ہوگا؟ نہیں جاؤں گا میں نماز پڑھنے۔ جب وہ ایکشن لے لیتا ہے بے نمازی تو علماء بھی بولتے ہیں کہ اپنا کھا پی کر کے ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے رہے، ارے یار چلو چھوڑ دو، وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا وہ اپنا سمجھے گا، چھوڑ دو ان کو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ آئیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیسا کیا۔ غور سے سنیے گا، ایک ایک چیز کو لے کے چلوں گا، اس کے بعد میں اپنی اصل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ کیسے نبی نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے سنیے۔ مکے میں جب مسلمانوں کی تعداد نہیں تھی، غور سے سنیے گا، مسلمانوں کی سنکھیا، میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟
हाँ, मुसलमानों की संख्या, मुसलमानों की तादाद जब मक्के में कम थी तो अल्लाह के रसूल चुपके से जाकर के लोगों को समझाते थे, दीन की बातें सुनाते थे, दावत और तबलीग का काम करते थे चुपके से। हाँ, लेकिन जब अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम लोगों को अलल ऐलान, चुपके से नहीं बल्कि तुम लोगों को अलल ऐलान इस्लाम की दावत दो। ये ऑर्डर किसने दिया? बोलो, किसने ऑर्डर दिया? ये अल्लाह ने। मेरी बात समझ में आएगी, रुकिए, गौर करके मैं ले जा रहा हूं आपको एक एक पॉइंट पे। नबी के जमाने में ये माइक था नहीं, ये लाउड स्पीकर नहीं, ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये वीडियो वाले नहीं, कोई भी नहीं थे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल कोहे सफा पर चढ़ गए। कोहे सफा एक पहाड़ का नाम है। कोई हाजी है यहाँ सुनने के लिए जो आए हैं? हाथ उठाइए, कोई हाजी है? कोई हाजी है? हाँ नहीं कोई? हाँ, हाजी साहब है। हाजी साहब अब बताइए, मक्का के करीब कोहे सफा नाम का एक पहाड़ है कि नहीं? हाँ, एक पहाड़ है। उस पहाड़ के ऊपर अल्लाह के रसूल चढ़ गए। किशनगंज वालों, मुझे आपसे प्यार है, आप लोगों से। गुज़श्ता साल आप लोग शायद आधा घंटा मेरी तकरीर सुने थे, इस साल आप सुनने के लिए पहले टाइम दिया है तो सुनना पड़ेगा आप लोगों को। सुनिए, उस पहाड़ पर जल्दी कोई चढ़ता नहीं था। हाँ, जैसे मस्जिद के मिंबर में वो जुमे के दिन इस्तेमाल होता है, जुमे के दिन, और सिर्फ मस्जिद का इमाम या बाहर से कोई मुकर्रिर, कोई मौलवी, कोई मौलाना आए तो वही चढ़ता है। या पूरे गांव की पब्लिक चढ़ती है मिंबर पे? चढ़ती है नहीं, सिर्फ इमाम चढ़ता है। तो उसी तरीके से उस पहाड़ में कोई चढ़ता नहीं था, लेकिन जब कोई चढ़ जाता तो ये इस बात की दलील होती कि आज कोई इम्पोर्टेंट बात है, कोई खास बात के लिए ही उस पहाड़ पर चढ़ता था। तो अल्लाह के रसूल उस पहाड़ पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल कैसे बुला रहे हैं, सुनिए। ऐ फलां कबीले वालों सुनो, ऐ हलीम चौक वालों तुम भी सुनो, ऐ किशनगंज वालों तुम भी सुनो, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो। यानी मैं एक मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह के रसूल उस वक्त कबीले का नाम ले लेकर के सबको बुलाए थे, सबको। ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो, ऐ फलां कबीले वालों तुम भी सुनो। सबको अल्लाह के रसूल जमा किए। तो जब लोगों के कानों में आवाज पड़ी, अरे अरे ये कौन बुला रहा है? बोले मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कौन? मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। तो जो लोग बीमार थे, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, वो लोग अपने बदले में किसी और आदमी को भेज दिए, अरे जाओ जाओ, आज मोहम्मद ने बुलाया है, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात है, जाओ जाओ, जल्दी से जाओ, जल्दी से जाओ। सब लोग जमा हो गए, जैसे आप लोग बैठे हैं कुरान हदीस सुनने, ऐसे सब लोग जमा हो गए वहां पर। और जब सब जमा हो गए तो सुनो अब क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल ने कहा, ऐ लोगों, मैं ऊंची जगह पर हूं, पहाड़ के ऊपर हूं, तुम नीचे बैठे हो, मुझे जो चीज दिखाई दे रही है वो तुमको दिखाई नहीं दे रही है। ऐ लोगों, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा है जो बहुत ही जल्द तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, ये लश्कर, तो क्या तुम मुझे सच मानोगे? ये दावत है, ये कोई दावत नहीं है। गौर से सुनिएगा। नमाज की दावत दिया? नहीं। रोजे की दावत दिए? नहीं। हज की ज़कात की दावत दिया? नहीं। आपने पहले ये कहा कि अल्लाह, ऐ
कि मक्के के लोगों, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा है जो बहुत ही जल्द तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? ये दिल में उतरने का तरीका देखिए, पहले उनके दिल में उतरिए। डायरेक्ट आप किसी को बोलेंगे वो कैरम बोर्ड खेल रहा है, चल चल नमाज पढ़ने के लिए चल, नहीं, ये तरीका नहीं है। रास्ते में कुछ बच्चे मोबाइल लेकर के ऐसे खेल रहे हैं, मौलाना साहब डंडा लेके आए, चल 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 नमाज पढ़ने के लिए, नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। पहले आप उनके दिल में घर बनाइए, उनके दिल में बैठ जाइए। तो सुनिए, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम मुझे सच मानोगे? तो सब लोगों ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, हम 40 साल तक आपके साथ उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, मार्केट में गए हैं, बाजार में गए हैं। अल्लाह के रसूल, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। क्या बोल रहे हैं? हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है, आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आपने किसी को धोखा नहीं दिया है। सब इकरार कर रहे हैं, क्या आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आपने कभी धोखा नहीं दिया है। यहां से एक पॉइंट मैं बता दूं आपको, एक पॉइंट, जो मौलवी दावत दे रहा है, जो मौलवी नमाज की दावत दे रहा है, जो दाई रोजे की दावत दे रहा है, जो मौलवी इस्लाम की दावत दे रहा है, तो दावत देने से पहले की जिंदगी उसकी आवाम के सामने साफ सुथरी होनी चाहिए, ताकि उनकी बातों का तब जाकर के असर पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, नहीं तो नहीं। देखो, सब लोगों ने कहा ऐ नबी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठे नहीं हैं, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। जब सब लोगों ने कहा कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, तब अल्लाह के रसूल अब क्या बोल रहे हैं? देखो, अब दावत दे रहे हैं, ऐ लोगों, अच्छा 2 आदमी 1000 करके दिए हैं, अच्छा इंशाल्लाह सबके लिए मैं दुआ कर रहा हूं, आखिर में आने दीजिए मुझको लाइन पर। तो अब अल्लाह के रसूल दावत दे रहे हैं, क्या करें? ऐ मक्के के लोगों सुनो, जब मैं बंदों के मुआमले में झूठ नहीं बोलता हूं, ऐ लोगों, जैसा कि तुमने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जब मैं मनुष्य के सिलसिले में, बंदों के सिलसिले में मैं जब झूठ नहीं बोलता हूं, तो ऐ लोगों, मैं उस अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बोलूंगा? ऐ लोगों, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाया है, मुझे अल्लाह ने नबी और रसूल बना कर भेजा है। गारी हिरा में मेरे ऊपर कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये सूरह अलग की चंद आयतें मेरे ऊपर नाजिल हुई हैं। है लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, लिहाजा ऐ मक्के के लोगों, एक काम करो, एक काम करो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, है लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुफलिहू, एक फायदा तुम्हारा ये होगा, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल आजम, तुम अरब के भी मालिक बन जाओगे, आजम के भी मालिक बन जाओगे। ये इजराइल तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, ये पाकिस्तान तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, ये अमेरिका तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। एक काम करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। जैसे ही नबी ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, तो सब सर नीचे किए हुए बैठे। अब कोई नहीं बोल रहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। नबी ने कहा कि मैं नबी बनाया गया हूं, तो कोई नहीं कह रहा है अब। क्यों? अभी जो सबने कहा कि आप झूठ नहीं बोलते हैं, हाँ, सबों ने अभी इकरार किया कि ऐ नबी आप झूठ नहीं बोलते हैं, तो सब सर नीचे किए हुए हैं। अभी अगर कहेंगे कि झूठ बोलते, तो अभी तो हमने कहा कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई, तो घर का आदमी खड़ा हो गया। कौन बता सकते हैं? अबू लहब, नबी का अपना सगा चचा अबू लहब, ये खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद कहता है तब्बत, खड़ा होने के बाद कहता है तब्बल्लक या मोहम्मद, है मोहम्मद तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा,
क्या तूने हमें इसीलिए बुलाया था? हाँ? हम इतने 360 मूर्तियों की इबादत छोड़ करके, पूजा छोड़ करके एक खुदा की इबादत करेंगे? नहीं, तू हलाक हो जा, बर्बाद हो जा। उल्टा सीधा कह दिया। किसने? अबू लहब ने। तो अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ से ये सबक हासिल कर लीजिए कि हम दीन की दावत दे रहे हैं, नमाज की दावत दे रहे हैं, रोज़े की दावत दे रहे हैं, और कोई हमें उल्टा सीधा कह रहा है तो हमको जवाब नहीं देना है, नहीं तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। अल्लाह के रसूल अगर उस वक्त जवाब दे देते तो जो प्लान बना करके अल्लाह के रसूल आए थे वो प्लान बिल्कुल बिगड़ जाता। तो अल्लाह के रसूल ने कुछ जवाब नहीं दिया। खामोशी से अल्लाह के रसूल पहाड़ के नीचे आए और चले गए। जब अल्लाह के रसूल ने कोई जवाब नहीं दिया तो जानते हैं अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया, और अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर एक सूरत ही नाजिल कर दिया। तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब, मेरे नबी की हलाकत की बात कर रहा है? तू खुद हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाएंगे, मेरा नबी नहीं। तो जो जवाब अल्लाह जिससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जवाब देगा। ये दावत का तरीका है। तो चलिए मेरे भाइयों, मैंने शुरू में क्या कहा था? हमने दो चीजों को छोड़ दिया है। कितने चीजों को? दो चीजों को, एक कुरान, एक हदीस। इन दोनों चीजों को छोड़ दिया है, इसीलिए हम नाकाम हो रहे हैं दुनिया में। इसीलिए नंबर एक, चलिए हम कुरान को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुरान कैसी किताब है? ये एक ऐसी किताब है, ये जो टेबल पर रखी हुई है किताब कुरान मजीद, ये कुरान इंसानों को इंसानों के अंदर चेंजिंग पैदा कर देती है, बदल देता है। इंसान को ये कुरान चेंज कर देती है, बदल देती है एक इंसान को। अच्छा, एक चीज बताइए, कुरान किस महीने में नाजिल हुआ है? बोलिए। रमजान के महीने में। ये कुरान रमजान के महीने में नाजिल हुआ है। दलील? अहले हदीस बगैर दलील के कोई बात नहीं करता है।